خدا یسوع مسیح کے باوفا جلالی اور قدوس نام میں میری طرف سے تمام گواہی ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کے لیے بہت بہت سلام، اور میں شکر گزار ہوں گواہی ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کا جنہوں نے موقع دیا، اور بالخصوص خدا کے خادم پادری سرفراز ولیم صاحب کا جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک خوبصورت اسٹوڈیو بنایا ہے، ٹیلی ویژن کھولا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے خداوند کا کلام سن سکیں۔ میرا نام پاسٹر نشان مسیح بھٹی ہے، میرا تعلق شیخو پورہ پنجاب سے ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اس پروگرام میں اپنے لیے خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے زبور کی کتاب، اس کا 31واں زبور اور اس کی پہلی آیت کریمہ ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ اس کا مضمون ہے خدا پر توکل کی دعا ہے۔ تو فرمایا گیا ہے خداوند کے کلام مقدس میں، اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ ہمیں خداوند پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں تو یقین جانیے گا کہ خداوند ہمارا جو زندہ خدا ہے وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہاں پر داؤد بڑے وثوق سے کہہ رہا ہے، اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے اور مجھے کبھی شرمندہ ہونے نہ دے۔ یہ یقیناً ہے کہ خدا کبھی کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بشرطے کہ کوئی اس پر اپنا توکل کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خدا کے کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ تکیہ رکھتے ہیں، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، اور نہ اس سے پہلے ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک خدا کے بندوں نے جب خداوند پر توکل کیا، انہوں نے اپنے خداوند پر توکل کیا، اور بے شک ان کو کہا گیا کہ تم اس سونے کی مورتی کو سجدہ کر دو، تم اپنے خدا کی عبادت نہ کرو، اس معبود کی عبادت کرو۔ تو خدا کے لوگوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا توکل جو تھا وہ خداوند پر تھا۔ بے شک وہ اسیر تھے، بے شک وہ اس ملک میں، وہ ملک ان کا اپنا نہیں تھا، تو بھی ان کا توکل جو ہے وہ خداوند پر تھا۔ میری مراد خدا کے تینوں سور میں جن کا نام صدرک میثق ابدنجو ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ ان کو کہا گیا، بے شک ان کو کہا گیا کہ آپ اس مورتی کو اگر سجدہ نہ کریں گے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شخص کو جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جب یہ بات وہ سن رہے تھے، وہ اپنے خدا سے توکل رکھنے والے تھے، انہوں نے بالکل اس بات کی جھجک محسوس نہیں کی، بلکہ بادشاہ پھر غصے میں آتا ہے اور ان کو کہتا ہے، اچھا میں تمہیں جلتی بھٹی میں ڈالوں گا، دیکھوں گا کون سا خدا ہے جو آپ کو میری جلتی ہوئی بھٹی سے بچائے گا۔ تو یہاں پر وہ بول اٹھے، انہوں نے کہا، ہمارا خدا اے بادشاہ تیری جلتی بھٹی سے بھی ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں تیری جلتی بھٹی سے بھی بچا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی ہمارا اس پر توکل ہے، ہم کبھی تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ بادشاہ نے ان کو جلتی بھٹی میں ڈال دیا، جیسا کہ آپ مقدس
दानियल नबी के साइफा में देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अगरचे उनको डाल दिया गया, ये दानियल की किताब उसका 3 बाब और 24 और 25वीं आयत में आप इसको देख सकते हैं कि बादशाह ने जब आग में उनको फेंक दिया तो वो खुद इस बात को देख रहा है। यह है खुदा के ऊपर तवक्कल रखने वाले लोगों की बात। तो बेशक उनको जलती भट्टी में डाल दिया गया, तो जिस पर उनका तवक्कल था वो जलती भट्टी में मौजूद हुआ। खुदा के कलाम में लिखा है, ये बादशाह खुद इस बात का इकरार करता है। वो पूछ रहे हैं अपने लोगों से कि हमने कितने लोगों को डाला है जलती भट्टी में। तो बताया गया भाई 3 लोगों को। तो बादशाह कहता है मैं 4 लोगों को देख रहा हूं। हालेलुया। तो खुदावंद अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है मेरा तवक्कल खुदा पर है, वो मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आगे भी हम देखते हैं दानियल की किताब में ही देखते हैं 6 बाब में, तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में फरमाया गया है कि एक खुदा का बंदा दानियल, ये भी उसी वक्त की बात है, खुदा के लोग जब असीरी में थे तो फरमाया गया बादशाह की तरफ से ये हुक्म नहीं था, ये जो दूसरी सारी टीम थी जितने उस बादशाही के अंदर काम करने वाले थे, हुकूमत में 122 लोग थे। ये 23वां जो है ये खुदा का बंदा दानियल है। वो बादशाह चाह रहा था कि हम ऐसा काम करें कि इसको खुदा के बंदे दानियल को उन 3 लोगों में शामिल किया जाए जो अक्लमंद हैं, दानश्वर हैं, जो ऊपरले दर्जे पर काम करें। तो खुदा के कलाम में फरमाया गया है कि जब दूसरे लोगों ने ये सुना कि ये एक असीर आदमी है तो ये हुकूमत करेगा हम पर, उन्होंने एक ऐसा हुक्मनामा लिखा जिस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर भी करवाई और कहा बादशाह इन अयाम में, इस माह में अगर कोई शख्स तेरे सिवा किसी और की इबादत करता है, किसी और की पूजा प्रस्तश करता है, तो उसके लिए यह हुक्म है कि वो शेरों की मांद में डाल दी। तो ये खुदा पर तवक्कल रखने वाला शख्स, जिसका खुदा पर तवक्कल था, उसको इस बात का पता चल गया, लेकिन उसका तवक्कल खुदा पर था। वो जानता था कि मैंने कभी कोई हुकूमत के अंदर रहकर भी मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शेर चीर खाए, जिससे मुझे शेर जरर पहुंचाए। उसको पता था कि मेरा खुदा जो इस्राएल का खुदा है, जो लश्करों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो मुझे इन शेरों की मांद से बचाने की कुदरत रखता है। तो अजीजों, ऐसा ही हुआ जब उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। तो बादशाह नहीं चाह रहा था, लेकिन ये अपने उस कानून के मुताबिक इसको करना पड़ा। तो खुदा के कलाम में हमें मिलता है कि जब सारी रात जो बादशाह है वो चैन की नींद नहीं सोया, ना वो सोया है, ना उसने अपने सामने साज बजने दिए हैं, वो बड़ा परेशान था। लेकिन दानियल जो है ये शेरों की मांद में आराम से सो रहा है। हालेलुया। तो इसी तरह खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह सुबह सवेरे उठा और वो कहते हैं, ए दानियल, जिस खुदा पर तेरा तवक्कल है, जिसको तू मानता है, जो तेरा माबूद है, क्या तुझे उसने शेरों से बचा लिया है? तो जी जो खुदा के कलाम में आया है कि दानियल ने कहा, बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने
जिस पर मेरा तवक्कल है, जिस पर मेरा भरोसा है, जिस पर मेरा तकिया है, वो आया और उसने इन शेरों के मुंह को बंद कर दिया है। हालेलुया। सो अजीजों, आज भी जो खुदा पर तवक्कल रखते हैं, याद रखिएगा वो दाऊद की तरह कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। तो दाऊद जिसने इस बात को, इस आयत करीमा को लिखा है, बेशक दुश्मनों ने बहुत कुछ उसके साथ किया, बादशाह उसको मार देना चाहता था, लेकिन उसका तवक्कल खुदावंद पर था। उसने इस बात पर यकीन किया हुआ था, तकिया रखा हुआ था, एक दिन मेरा खुदा जो है वो मुझे इन सारी मुसीबतों से आजाद करके अपनी कौम इसराइल का पेशवा बनाएगा। क्योंकि मैं खुद से नहीं मैंने ऐसा किया, खुदा के नबी ने मुझको मखसूस किया है, और मैं उसका तवक्कल था कि एक दिन वक्त आएगा कि मैं पूरे इसराइल का बादशाह बनूंगा। अजीजों, उसके तवक्कल ने उसको बादशाह बनाया और वो इसराइल का बादशाह हुआ। सो इसी तरह हम एक बादशाह के और बारे में देखते हैं। उस बादशाह का नाम हिजकिय्याह बादशाह है। जब खुदावंद के कलाम में लिखा गया है, जब उसके लिए ये असूरी बादशाह की तरफ से, सनहेर बादशाह की तरफ से एक नामा लिखा हुआ आया और उस पर था, वो इसराइल को भी सुनाया गया। रबशाकी ने, जो बादशाह का एक खास शख्स था, उसने उन यहूदियों की जुबान में पढ़कर सुनाया, और जिस पर यह बताया गया था कि मैंने बादशाह की तरफ से ये था कि मैंने पहले भी बादशाहियों को जीत लिया है, मैंने उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। ए हिजकिय्याह, तू किस खुदा पर तवक्कल करता है? या उस सारे इसराइल को कह रहा था, उस खुदा पर तवक्कल ना करो, उस बादशाह की बातों पर तवक्कल ना करो, वो खुदा तुम्हें नहीं बचा सकता, वो खुदा तो नजर भी नहीं आता। लेकिन खुदा के बंदे का तवक्कल उस पर था। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा के घर में गया और उसने ये कहा कि खुदावंद ये सब कुछ देख ले जो कुछ सनहेर बादशाह ने कहा है। तो खुदा के घर में जाकर उन सारी बातों को उसने बता दिया खुदा को, जिस पर उसका तवक्कल। सो अभी मिलते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और खुदा के कलाम को हम सब मिलकर सीखें। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम फिर खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में फरमाया गया है कि ये बात जो हिजकिय्याह की हम कर रहे थे, ये इसराइल के अंदर ये यहूदा के बादशाहत में से एक बादशाह था जिसका हम आज जिक्र देख रहे हैं। ये दूसरा सलातीन उसका 19वां बाब, इसमें ये जिक्र पाया जाता है कि वो बादशाह, यहूदा के बादशाहों में ये बादशाह अच्छा बादशाह था, जिसने खुदा के कलाम के मुताबिक जितनी बुत परस्ती यहूदा के अंदर या हो रही थी, उसको इसने काफी हद तक लोगों को छोड़ने पर कहा। लेकिन जब ये बादशाह खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदा पर तवक्कल करता है, इसको पता है कि खुदा पर तवक्कल करना आदमी पर भरोसा करने से ज्यादा बेहतर है, तो उसने खुदा पर तवक्कल करते हुए कहा कि मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा। और साथ ही उसने कुछ लोगों को यशायाह नबी के पास भेजा। ये मुकद्दस सलातीन के 19वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, पास हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यशायाह के पास आए। यशायाह ने उनसे कहा कि तुम अपने आका से यूं कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उन बातों से जो तूने सुनी है, जिनसे शाह असूर के मुलाजमों ने
मेरी तकफीर की है, ना डर, देख मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा और मैं उसे उसी मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। ये बादशाह जो है, ये असूरी बादशाह नहीं जानता कि जिस खुदा के बारे में बात कर रहा हूं वो लश्करों का खुदा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसको ये पता नहीं था, तो खुदा ने ऐसा ही किया। नबी की मार्फत भी जो लोगों को नबी के पास भेजा गया था, नबी के पास भी जो गए थे, तो उन्होंने भी सारी बातें खुदा के नबी को बताई कि खुदा का बंदा हिजकिय्याह जो है उसने तेरे पास भेजा है। तो जब उन नौकरों से, उन मुलाजमों से कहा गया कि जाओ जाके उसको बता दो कि खुदा ने जो उसने खुदा के नाम की तकफीर के बारे में कहा गया है, खुदा ने वो सब कुछ सुन लिया है और वो एक ऐसी अफवाह सुन के जो मुहासरा किए हुए है वो वापस चला जाएगा और मैं उसके मुल्क में ही उसको कत्ल कर डालूंगा। सो खुदा पर तवक्कल रखने वाले का ये अंजाम है कि खुदा ने खुद उसकी जगह उस असूरी बादशाह को मात किया, उसकी फौज वहां से भाग गई। और आज भी जो लोग खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, दुश्मन की सारी फौजें, दुश्मन का सारा असर व तसीर आज भी भाग जाता है। अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में बहुत से आपको और भी हवाला जात मिल सकते हैं जिनमें खुदा पर तवक्कल करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। ये मुकद्दस मूसा का हवाला आप ले सकते हैं, खुदा के बंदा यशवा का हवाला आप ले सकते हैं। खुदा ने कभी उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया। ये आप जानते हैं कि ये खुदा के कलाम का बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब वो बड़े समुंदर के पास आए तो पीछे से फराउन की फौज भी आ रही है, आगे पानी ही पानी है, लेकिन खुदा पर तवक्कल रखने वाला मूसा, जब कौम रो रही है, वो परेशान है, लेकिन खुदा के बंदा मूसा ने कहा, तुम चुपचाप खड़े होकर खुदा की कुदरत को देखो, जिन मिस्रियों को आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। उसका तवक्कल था कि हमारा खुदा जो हमें वहां से निकाल लाया है वो हमारे साथ है, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो यकीनन जब आप सब जानते हैं, खुदा के कलाम को जानने वाले हैं, तो खुदा के कलाम में फरमाया गया है कि जब उसने लाठी लगाई और पानी दो हिस्सों में तकसीम हो, खुदा के लोग जिनका खुदा पर तवक्कल होता है उनके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। जो ऐसा सोचते हैं कि हम खुदा पर तवक्कल करेंगे और खुदा हमारे साथ, यकीनन खुदा उनके साथ खड़ा हो जाता है। आज भी हम जानते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब खुदा के लोग खुदा पर तवक्कल करके काम को शुरू करते हैं तो खुदावंद अपने आसमान को खोलता, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता, क्योंकि वो तवक्कल खुदावंद पर करते हैं। तो हमें खुदावंद पर तवक्कल करने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स किसी आदमी पर तवक्कल करता है, किसी आदमी पर भरोसा करता है, किसी आदमी पर तकिया करता है, तो खुदा का कलाम फरमाता है, मलाऊन है वो शख्स जो आदमी पर भरोसा करता और फर्द बशर को अपना बाजू जानता है। तो एक खुदा के खादम की बात है कि उसने एक शख्स को, उस शख्स ने खुद कहा कि आप हमें बुलाते ही नहीं अपने प्रोग्राम्स में, तो आप हमें बुलाएं तो फिर हम आपके साथ हैं। तो शख्स ने ऐन वक्त पर आकर वो उस इबादत में भी नहीं आया। तो
پھر وہ خدا کا خادم کھڑا ہوا، اس نے مذبح پر جا کر خدا سے معافی مانگی، خداوند میں نے تجھ پر توکل نہیں کیا، کسی شخص پر کیا ہے، تو خداوند مجھے معاف کر دے۔ عزیزو، ہمیں خدا پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا پر توکل کریں گے، کبھی موسیٰ کی طرح شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی دانییل کی طرح شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی صدرک مسک عبدنجو کی طرح شرمندے نہیں ہوں گے۔ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم خدا کے ساتھ جب چلتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو خدا ہمیں ناممکن کام کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا پر توکل کرنا آدمی پر بھروسہ کرنے سے کتنا بہتر ہے۔ عزیزو، اگر ہم خدا ان کے کلام مقدس میں دیکھتے جائیں تو نئے عہد نامہ میں بھی جن کا یہ توکل تھا کہ ہمارا خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، ہمارا خدا ہمیں ان مکانوں میں لے جائے گا جو ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں، خدا ہمیں وہ برکتیں دے گا، وہ جگہ عطا کرے گا جو کبھی دیکھنے میں بھی ہمارے نہیں ہے، کبھی دنیا میں ایسی ہے ہی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جو خدا پر توکل کرتے ہیں، جنہوں نے خدا پر توکل کیا ہم سے پہلے بھی، وہ بے شک انہوں نے شہادت کے جام پیے، بے شک وہ دکھ ان کو دیا گیا، بے شک ان کو مارا گیا، لیکن تو بھی انہوں نے خدا پر توکل کیا تھا۔ وہ ان کے آنکھوں کے سامنے ایک بڑی بات تھی کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے۔ عزیزو، آج بھی اگر آپ خداوند پر توکل کریں گے تو یقیناً آپ ان ایمانداروں کی طرح جو آسمان پر چلے گئے دکھ اٹھاتے اٹھاتے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں ہیں۔ اگر آپ بھی خدا پر توکل کرتے ہیں، چھوڑیں آدمی پر بھروسہ کرنا، خدا پر توکل کریں، خداوند آپ کو ساری چیزوں سے آسودہ کرے گا، ہر برکات آپ کو دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ آئیے خداوند کی پاک حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ زمین و آسمان کے خالق اور مالک خدا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے آج کی خداوند خدا اس خوبصورت خداوند خدا تیری باتوں کے لیے، اور خداوند گواہی ٹیلی ویژن کے لیے، جس کے وسیلہ سے ہم خداوند لوگوں تک تیرے کلام کو پہنچا رہے ہیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے اور دعا کرتے خداوند اس ساری ٹیم کو برکت دے، بھائی سرفراز ولیم کو برکت دے، اس کے خاندان کو برکت دے، اور خداوند اپنے جلال کے لیے اس برے ٹیڑے کجرو وقت میں اپنے لوگوں کو چراغوں کی طرح چمکنے کا فضل دے۔ مسیح کے پیارے جلالی اور قدوس نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آخر میں پھر سے خدا کے تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں خدا کے کلام کی باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ پھر سے تمام ٹیم کا، بھائی سرفراز کا اور تمام سامعین کا خداوند یسوع مسیح میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔